ارے دلہام بیٹا، یہ تو کافی گہرا زخم ہے۔ مما کی آواز میں انا سمیت وہ دونوں بھی دلہام کے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگی، جہاں سے الرجی کی وجہ سے ریڈش مزید بڑھ چکی تھی، جبکہ زخم بھی کافی گہرا تھا۔ انا کا لکھا ہوا ایک حرف بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بڑی فرصت سے بیٹھے ان لفظوں کو کھرچ دیا گیا تھا۔ انا کی آنکھوں میں حیرت تھی تو رمز اور فرحان کا شرمندگی کے مارے برا حال تھا۔ انا نے بے ساختہ نظر موبائل پہ کی تھی، جہاں پر اس نے دلہام کے ہاتھوں پہ مہندی لگانے کے بعد تصویریں کھینچ رکھی تھی۔ دلہام نے اس کی حالت دیکھتے ہاتھ بڑھائے سہ لیا اور تصویر ریموو کر دی۔ انا نے سر جھکا لیا تھا، جو کہ یہ بازی ہار جانے کا واضح اعلان تھا۔ اس کے زخم کو رستے اپنے نام سے نفرت کی انتہا جو دیکھی تھی۔ مما جان دلہام کو وہاں سے اٹھا کر لے گئی تھی، اس کی طبیعت سے واقف جو تھی۔ آخر لگا کیسے یہ زخم؟ وہ اس کے ہاتھ کی ڈریسنگ کرنے لگی تو دلہام نے انہیں روک دیا اور موسیٰ کو کرتے فوراً اندر آنے کا، ساتھ میں اس کی میڈیسن بھی۔ سب اتنے حیران جو ہیں کہ دلہام اور انا کا جوڑا اتنا پیارا اور پرفیکٹ سا بن گیا نظر تو لگنی تھی۔ موسیٰ کو ڈریسنگ کرتے دیکھ کر وہ اس کے لیے میڈیسن نکال رہی تھی۔ مما، آپ لوگوں نے خواہ مخواہ کی رسموں کا گھڑا پالا ہے، آپ جانتی بھی ہیں یہ دن میرے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے۔ وہ حد درجہ بیزاریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ اے لو، ایسے کیسے کھڑاک؟ ہمارے بچے کی شادی، ہم تو ہر رسم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، اور دنیا بھی تو دیکھے، اپنے طبقے کے لوگوں کو دیکھا ہے کیسے نمائش کرتے، شادی کرتے، اور تم نے اتنے کم لوگوں کو انوائٹ کرنے دیا۔ مما نے باتوں باتوں میں خود اس کی کلاس لی تھی۔ اوہو، کیسے ہیں بھائی آپ؟ مجھے ابھی رمز نے بتایا کہ انا بے وقوفی کی وجہ سے دریا جو فل آن زبان چلاتے آیا تھا، ماں کو دیکھتے زبان پہ بریک لگ گئے تھے۔ کیا کیا ہے؟ انا نے ماں کا ماتھا ٹنکا تو دلہام کی گھریں ملی۔ وہ مطلب کہ بھائی کو الرجی ہے ریڈ روز سے، تو وہ اس نے کچھ پتہ نہیں، شاید ایسا کچھ کہا تھا۔ جنید نے بوکھلاہٹ میں الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں مارتے بات مکمل کی تھی۔ لو، اس بچی کو بھلا کیا معلوم کہ دلہام کی کیا عادات و خصائل ہیں۔ دریت، تم نے باہر کے انتظامات دیکھے ہیں؟ جی مما، آل از اوکے، دریت نے فوراً سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے پھر موسیٰ اور تم زنان خانے میں کھانے کا بندوبست کراؤ اور اپنی موجودگی میں سرونگ کروانا۔ مجھے ان لڑکیوں پہ ذرا بھی اعتبار نہیں کہ یہ کوئی کام احسن طریقے سے کریں۔ چلو بیٹا، اب میں خواتین کو منع کر دوں گی، مزید کوئی رسم کریں گی تو انا تک ہی ہوگی۔ مما نے آل ان ون آرڈر ریپلیس کیے تو اسے ان کی خاطر ماننا پڑا۔ انا نے اسے آتا دیکھا تو مزید کوئی شرارت اور پنگا لینے سے پرگریز کیا تھا۔ یہ تو ٹیلرز تھا، اگر تم نے مجھے ٹارچر کرنا بند نہیں کیا تو اس کے بدلے میں جو ہوگا تم سوچ سکتی ہو۔ دلہام نے حاضرین پہ سرسری سی نگاہ دوڑاتے آواز میں انا کو کہا تو اس نے گلابی ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا تھا۔ بہتر یہی نا کہ تم میرے راز رکھو اور میں تمہارے۔ اب کے دلہام نے بنا کسی کی پرواہ کیے اس کا ہاتھ تھامے آہستگی سے لبوں سے لگایا تو وہ ساکن سی رہ گئی تھی۔ اپنا مومی ہاتھ اس کی جلادی ہاتھوں سے چھڑوانا چاہ پر گرفت سخت تھی۔ اوہو، سرعام رومانس! دریت نے بھائی کو چھیڑا تو اس کا کہکمہ بلند ہوا۔ ہم سفر من چاہو تو بڑے بڑے 30 مار خان بھی سرنڈر کر دیتے ہیں۔ دریت کی کزن نے بھی پلجھڑی چھوڑی، کیونکہ تقریباً سبھی جانتے تھے کہ انا دلہام کی چوائس ہے۔ من پسند ہم سفر کو تو ہم تنہائی میں بتائیں گے اپنی محنت کی انتہا۔ دلہام نے زخمی ہاتھ سے ہی اس کا ہاتھ دبایا تھا، جبکہ خون کی ایک پتلی سی لکیر دلہام کی پٹی پہ پھر سے نمودار ہوئی تھی۔ وہ اس شخصی جنونیت سے خائف ہوئی تھی۔ مہمان کھانا کھانے لگے تو وہ رمز اور فرحان کے ہمراہ اپنے روم میں آئی تھی، جبکہ وہ اسے چھوڑتے ہی چلی گئی۔ دماغ کی نسیں بری طرح پھٹنے لگی تھی۔ اپنی جلد بازی میں لیے گئے فیصلوں کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دلہام وقت اسے چاہے گا تو چوٹی کی طرح مسل سکتا ہے۔ وہ بے چین سی کمرے میں ٹہل رہی تھی، اسے یہ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وقت تو ابھی بھی اس کے پاس تھا۔ کچھ سوچے اس نے ہینڈ کیری میں اپنا سامان سمیٹا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ قدم حویلی والوں کی بدنامی کو باعث بنے گا، پر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وقت حویلی میں ارینا کی اجاڑ زندگی کو لیے اداسی چھائی تھی، جب عدت کے دوران ہی انکشاف ہوا کہ وہ منیب بخت کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ادھر ایمرا کو ارینا کے لوٹ آنے سے عجیب سی بے چینی اور انسیکیورٹی کا احساس ہوتا تھا۔ عدت کی مدت پوری کی اس نے جیسے ہی سب کے درمیان اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تو ایمرے کی نگاہیں ہر وقت اسی کی کھوج میں رہتی۔ بی جان کی ارینا کے لیے صدقے واری ہوتی محبت، بڑی بھابھی کا اس کے لیے آگے پیچھے گھومنا، بڑے بھا سے لے کے شاہ بخت سمیت اس سے چھوٹے بھائی کا ارینا کے لیے کنسرٹس اسے مینٹلی ٹارچر لگتا تھا، اور اس سب میں وہ دلہام کو مسلسل اگنور کیے شاہ بخت سے لڑائی کا ایک نیا نکتہ نکالے بیٹھی ہوتی۔
खुदा का नाम लो इमरे, वो तुम्हारी बहन है, इसकी औलाद दुनिया में आने से पहले तो यतीम हो गए, तो क्या तुम्हें नहीं लगता हम सबको इससे हमदर्दी दिखानी चाहिए? शाह बख्त एक दिन इससे दो टोक बात करने का फैसला कर बैठे थे। हमदर्दी या फिर सोई हुई मोहब्बतें बेदार करने का? तुम्हें बता दूं वो मेरी सगी ही बहन है और इसे निकाह तुम मेरे मरने पर ही कर सकते हो। इमरे दहाड़ी तो शाह बख्त अपने हाथ को उठने से नहीं रोक सके थे। तुमने मुझे इस लड़की की वजह से मारा, जिस दिन से वो यहाँ आई है तुम हमें पूछते नहीं हो, तुम्हें हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा अरीना की फ़िक्र काहे रखती है। वो उसका गिरबान थामे भरपूर अंदाज में एहतजाज करने लगी थी, जबकि दिलहाम सहमा एक तरफ हो गया। इसके माँ बाप के दरमियान हमेशा से झगड़े होते थे, पर इस शिद्दत के वो पहली बार देखा था। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में भरा शक का खनास निकल जाएगा तो तुम्हें सब कुछ ही साफ शफाफ दिखेगा, वरना तुम्हारे वहमों का इलाज मेरे पास नहीं, और ना ही खुद को पारसा साबित करने के लिए मेरे पास कोई दलील है। शाहबाज गुस्से में कमरे से निकल गए तो वो निढाल सी बिस्तर में बैठी थी। घर में इसे लेके होती और बातों और स्ट्रेस से फ्री अरीना हरदम शौहर को याद करते आने वाली ज़िंदगी के बारे में हज़ार उबाम लिए हुई थी। जब इसकी डिलीवरी के दिन नज़दीक आने लगे थे, इसी दिन मर्द हज़रात में से घर में कोई भी नहीं था। जब शाबक घर में दाखिल हुए तो किचन से निकलती अरीना को फर्श पे ढेर होते देखे तेज़ी से इसकी तरफ बढ़े थे, और इसी वक्त एमरे भी कमरे से निकली थी, जो अरीना को शाबक की गोद में देखकर हक्का बक्का सी हुई थी, जो कैसे तेज़ी से बाहर की तरफ लेके दौड़ा था। इस मंज़र ने रगों में फ़िशार बर्पा किया था। अरीना के यहाँ बेटी पैदा हुई तो अपनी रोशन पेशानी वाली किस्मत बेटी को देखते हुए फिर से रो पड़ी थी। एक हफ्ते बाद घर आई तो बुजुर्गों का फैसला सुनते गुमसुम हो गई थी, जिन्होंने अरीना और इस बच्ची के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसका अक़द शाह बख्त से छोटे मुइस बख्त से करने का फैसला किया था। इधर इम्र तो चिंगारी बनी हुई थी। तुम यही चाहते थे ना कि वो हमेशा तुम्हारे सामने रहे। मुझे यही लगता था कि तुमने मुनीब का भी एक्सीडेंट कराया ताकि अरीना हमेशा के लिए यहाँ आ जाए। इमरे की बातों पे वो शाकी सा बैठा था। तुम हद दर्जा जाहिलियत का मुज़ाहरा कर रही हो इमरे, मैं अपने बेटे के साथ बहुत खुश व मुतमईन हूँ। शाहबख्त ना चाहते हुए वजाहत देने लगे थे, पर इमरे पे तो जैसे अरीना की नफरत का भूत सवार था। एक रात बादल खुलकर बरसे थे, इसके बावजूद भी तूफान तक के थमने का नाम नहीं ले रहा था। अरीना अपनी 6 महीने की रोती बच्ची को चुप कराने में निढाल सी बैठी थी जब कोई इसके रूम में आया था। अरीना, शाह बख्त को गोली लग गई है, इतने तूफान में कोई डॉक्टर मिलना भी नामुमकिन है, प्लीज़ तुम इन्हें देखो, तुमने डॉक्टरी भी पढ़ी थी ना। इमरे की आंखों में आंसू का समंदर अरीना की धड़कन बंद करने लगा था। इस पर तो आज मुनकशिफ हुआ था कि वो तो कभी इसे दिल से निकाल ही नहीं पाई थी, और अपनी बच्ची और इमरे के हमरा तेजी से वहाँ से निकली थी, ये देखे बिना कि इमरान ने दोबारा से रोती पिलकती बच्ची को वहीं छोड़ दिया है। अरीना बारिश में भीगते अन्य किसी की तरफ दौड़ी थी कि क्योंकि अमरा ने कहा था वो वहीं, और इमरे आराम से छाता पकड़े इसके पीछे आई थी। एनकेसी में दाखिल होते अरीना समझ ही नहीं पाई थी कि कब एनकेसी का लॉक घुमाते दरवाज़ा बंद हुआ था। शाहबाग ज़ीरो बल्ब की रोशनी में सामने बड़े बेजान से वजूद की तरफ झुकी थी, जब एकदम से तमाम लाइट्स ऑन हुई थी। बाहर हमारे कंधों पे कुछ भी नहीं भरा हुआ है, कोई शिकायत नहीं कर रहा, हमारे पागल दिल का मुजरिम। हमारे बेटे की शादी आज, और वो तुम्हें लेने भी नहीं आया। तुम तो कहती थी कि वो तुम्हें लेने आएगा। इसकी ड्यूटी पे मामूर औरत ने ज़मीन खोदती औरत से पूछा था, वो आएगा शाबख्त और रीना को दफन करने के बाद वो जाएगा हमें यहाँ हमेशा के लिए मेरे पास। वो हद दर्जा खुशफहम हुई थी, जबकि सामने बैठी औरत ने तासुफ से इसे देखा था। वो आज तक तुमसे मिलने नहीं आया, आखिर ऐसा क्या किया है तुमने जो एक बेटे को अपनी माँ से इतनी नफरत है? सामने वाली औरत के सवाल की बात पे इसकी आंखों में सुर्खी छाई थी। तुम्हें किसने कहा वो मुझसे नफरत करता? वो मेरा बेटा, वो बहन नहीं थी जो वो डाइन, वो मेरा बच्चा, मेरा शौहर छीन के ले गई। मुझसे नहीं नफरत करता कोई मुझसे। मैं तो, हाँ, मैं ही तो लाडली बेटी हूँ शाहबख्त हवेली की। वो जुनूनी अंदाज में कहती इस औरत का गला दबा रही थी, जो वजन में इससे तकरीबन आधी ही थी। इसकी किस्मत अच्छी कि सिक्योरिटी गार्ड का वहाँ से गुजर हुआ था और वहाँ की इंतज़ामिया अलर्ट हुई थी। बाहर बजते ढोल की थाप और शहनाइयों से वो मोबाइल की आवाज़ सुन नहीं पाया था, जबकि कई बार शोर मचाने के बाद मोबाइल दोबारा बजना शुरू हुआ था। दिल्हम की अचानक निगाह पड़ी तो हॉस्पिटल से कॉल देखते हुए चौंका था। सर, मैडम एमरे की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई और उन्होंने हमारी साथी औरत को ज़ख्मी कर दिया है। दूसरी तरफ से सहमा सहमा से अंदाज दिल्हम को स्ट्रिक कर गया था। कितनी देर माउफ होते दिमाग से सिचुएशन का अंदाज़ा करने लगा था, जब कुछ सोचते हुए खड़ा हुआ और तेज़ी से पार्किंग की तरफ बढ़ते गाड़ी निकाली।
दुखते सर से वो बमुश्किल ड्राइव कर पा रहा था जब हवेली से कुछ ही देर मुखालिफ सिम से आते वजह उससे गाड़ी टकराई थी। वो बमुश्किल गाड़ी कंट्रोल करते तेज़ी से नीचे उतरा था। इधर इसके सर से चादर ढलकी थी। इसने चुंधियाई से आंखें ऊपर को उठाए और इसी वक्त दिलाम की निगाह इस पर पड़ी थी। दूसरे ही लम्हा गोया आसमान सर पे गिरा था। वो क्या करने वाली थी ये सोच आते ही दिलाम का दिमाग शॉर्ट हुआ था। दूसरे ही लम्हे सन्नाटे में एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पड़ी थी। बद किरदार माँ की बदकिरदार बेटी। वो गुस्से में भनकाते हुए इसे बाजू से पकड़ते दोबारा जमीन पे गिरा गया था। और तुम क्या हो दलाम बक, कातिल माँ के कातिल बेटे। सन्नाटों को चीरती आवाज़ ने इसकी जात के जख्म उधरते फिर से खामोश इख्तियार की थी। और तुम शायद भूल रही हो कि कभी इसी कातिल ने से तुमने बेपनाह प्यार किया था। वो झुकते हुए इसके करीब बैठते सख्ती से इसके चेहरे को हाथों में बींच गया था। बिल्कुल अपनी गलती में बिल्कुल नहीं भूल सकती। आपको भी शायद याद हो कि इस बदकिरदार लड़की से आपको इश्क का दावा था। हमारे खौफ दुनिया है, गम का खौफ नहीं। हमारा खौफ ख़त्म हो गया। वो बेखौफ निगाहें इस पे जमाए बोली थी, तब तक जब मैं तुम्हारी असलियतों से वाकिफ़ नहीं था। दिल्हाम ने इसकी सख्ती से पकड़े चेहरे को झटका था। सेम टू यू दिल्हाम बख्त। अना दिलावर ने भी तब तक आपसे मोहब्बत की थी जब तक वो आपकी असलियतों से वाकिफ़ नहीं थी। बिना उधार रखे अपना हिसाब चुकता किया था। अना दिल वो दहाड़ा था। अना दिलावर क्यों भूल जाते हैं आप। अब अना दिल्हाम के दिल में नहीं रहती। अना ने कपड़े झाड़ते हुए दोनों हथेलियों को इसके सामने किए तो इसे झटका लगा था। सुबह तक सजाई गई हथेली में रोशन नम अब जख्मों में बदल चुका था। वो यकटके से ही देख रहा था। नफरत करना सिर्फ दिलाम बख्त को नहीं आती। अगर अपनी लकीरों में से आना दिलावर कबूल नहीं है तो आना को तो कभी भी दिल्हाम बख्त कबूल नहीं। वो चादर को फिर से सर पे जमाए अनजान मंजिल की तरफ बढ़ती फिर से इसकी वहशतों को आवाज़ दे गई थी। तभी तेज़ी से इसकी कलाइता में खुद के करीब गया, इतना करीब के दिल्हाम की बेतरतीब जलत सी सांसें अना के चेहरे पर पड़ रही थी। दिल्हाम बख्त अगर इंतहा की मोहब्बत कर सकता है तो नफरत भी कर सकता है। अनादिल मेरे गदब को आवाज़ मत दो, मुझे ऐसे ही रहने दो, नहीं तो तुम्हारा कत्ल मुझ पर वाजिब होगा। नादिल दल्हाम की गिरफ्त और उसके बालों के गिरद नकशा कस रही थी और दर्द की शिद्दत से चिल्ला उठी, तुम वैशी हो, आई हेट यू दिल्हाम बख्त। नफरत का दावेदार शख्स अपनी मजीद तजलीस सह नहीं पाया था, तभी इसे पीछे को धकेलते गाड़ी से निगाहते इसके लबों से इस नफरत की दास्तान को चुना था। इसकी गिरफ्त में इतनी शिद्दत थी कि अना को अपनी सांस छिन जाने का यकीन होने लगा था। तभी इसने अपने पंजों को दिल्हाम बख्त के सीने में गाड़ा था, लेकिन वो टिस से मिस होने की बजाय इसके लबों को रिहाई देते इसकी सरदार गर्दन पे अपना लम छोड़ते पीछे हटा था। इन वहशत भरे लम्हात ने अना की आंखों में पानी जमा किया। इसे दल्हाम बख्त से नफरत मजीद बढ़ती हुई महसूस हुई थी। मर जाओ तुम दल्हाम बख्त, जिंदा रहते भी तुम इंसानों के लिए किसी सज़ा से कम नहीं हो। वो हवासों में आती ही इस पर चिल्लाई थी, बकवास बिल्कुल नहीं आना लिया आपसे, तुम का सफ़र भूले से भी तय ना करना। अब तक के मैंने तुम्हारी सारी बदतमीजियाँ सही, लेकिन अब और नहीं। रात के इस पर तुम हवेली छोड़ के क्या साबित करना चाहती हो आखिर। दिल्हाम के सख्त हाथ फिर से इसके बाजू पे जमे थे। मुझे नहीं करनी है शादी, दम घुट रहा है मेरा। मुनाफ़िक़त की इस दुनिया में दलाम बख्त या तो सब कुछ भूल के मुझे दिल से अपना लो, दूसरी सूरत में हम रास्ता अलग कर लेते हैं। बिना किसी खौफ डर के इसने कहा था, ओ रियली तुम्हें शादी नहीं करनी, दैट सिंपल। चल के दारा जान को बता दो। मुझसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाते बोला और अगले 3 मिनट में वो हवेली में थे। हवेली के अगबी हिस्से से होते हुए इसकी संगत में दारा जान के पास आया था जिसे जो सोने की तैयारी करने लगे थे। जख्मी शेर बने दिल्हाम और मिट्टी में लथड़ी अना को देखते चौंके थे। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना। दारा जान हवास बख्ता से इनके करीब आए थे। अजनबियों पे एतबार करने का शौक है ना आपको, पूछिए इससे क्या चाहती है ये। दिल्हाम ने गिरफ्त ढीली करते हुए इसे धक्का दिया तो जो दाराजान के कदमों में गिरी थी। वो ना समझी से इन दोनों को देख रहे थे। बोलो। दिल्हाम बख्त ने के अचानक धारने से सहमी और हिम्मत पैदा किए खड़ी हो गई। दाराजान अगर मैं आपसे कुछ कहूँ, कुछ मांगूँ तो आप मुझे देंगे। वो किसी लाडली बच्चे की मानत इनके सामने आर कर रुकी थी। दाराजान ने बिना बोले इस्बात में सर हिलाया। मुझे दिल्हाम बख्त से तलाक चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी। क्योंकि दिल्हाम बेदना से चौंका था। इसे यकीन नहीं था कि वो तलाक की बात करेगी, लेकिन जितनी ही के दोनों तरफ नफरत की भड़कती आग थी, इसमें मोहब्बत व इश्क का दावा तो झल के भस्म हो चुका था। अगर ये रिश्ता भी ख़त्म हो जाए तो शायद है इन्हें फ़र्क पड़ता। वो
सोचों में मगन था जब अना की अगली बात इसे मज़ीद धक्का दे गई थी। एकदम से होने वाली रोशनी में इसकी आंखें चुंध आई थी, जबकि सामने पड़ा वजूद अपने जिस्म से मिस करता इसके हाथों में खोया था। अरीना अफरीम साहब की आवाज़ पे वो झटके से पलटी थी। वो बिजली सी कहीं दूर गिरी थी, जहाँ इमरे इसकी बेटी को उठाए खड़ी थी, और उसके साथ में शाहबख्त, अमराव जान, मोइस बख्त और बड़े भा के साथ भी यकीन सी बेजान, जैसे कुछ अनोखा सा देख लिया हो। सुन होते दिमाग से इसने बेड की तरफ निगाह की, जहाँ पे मौजूद शख्स भी इसके जैसे ही सबको देख रहा था। तुम्हारी इतनी जुर्रत बगैरत इंसान के हमारे घर की इज्जत पे हाथ डालो। शायद वो शाहबख्ता को करीबी था, तभी वो पूरे ज़ौक़ से इस पे झपटा। शाहबख्त, तुम मैं नहीं, ये खुद आई है मेरे पास। और शाहबख्त के अचानक पड़ने वाले थप्पड़ ने इसकी नाक से खून का फवारा छोड़ा था। वो चकराए दिमाग से बेड पे बैठा। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी ही हविस पड़ी थी तो बता देती, हम तुम्हारा किसी के साथ निकाह करवा देते। बेहया लड़की, तुमने ख़ानदान की इज़्ज़त नीलाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दफ़न करें इसे यहाँ बाबा। इसे तो इतनी शर्म नहीं कि ये इसकी बहन का घर है। तुम्हारी इन हरकतों से मेरे घर पे क्या असर पड़ेगा, कुछ सोचा है तुमने? इमरे अचानक से इस पर उमड़ते थप्पड़ों की बारिश करने लगी थी, जबकि इसके हाथ में थामी बच्ची बिलबिला उठी थी। बाबा, ये सब इमरे झूठ बोल रही है, इसने मुझे खुद। बकवास बंद करो तुम अपनी और अपने गंदे खून समेत दफ़ा हो जाओ। इसमें भला क्या शक हो सकता है कि कहीं न कहीं मुनीब की मौत की भी तुम ही ज़िम्मेदार हो। अफ़रीन भी इमरे की ज़बान बोलते नज़र आई तो बाप की बदगुमानी इसे निढाल कर गई। एक पुरउम्मीद निगाह शाहबख्त पर डाली तो इसने तनफ़्फ़ुर से निगाह फिर ली। वो अजनबी शख्स जिसे इसे इसके नाम पे ज़ोकोब किया गया था, अपना ज़ख्मी वजूद उठाए वहाँ से निकलने लगा था, जब दारा जान की आवाज़ पे रुका था। तुम इसे साथ लेके जाओगे अभी के अभी? हम इसके सहराबान थे, तुम्हें इसके निकाह में देते हैं। ख खड़े पिए पैर ही दाराजान ने भतीजी का बोझ सर से उतार फेंका था। दाराजान, मेरी बात सुन लें प्लीज़ एक बार आप लोग। अरीना की दुआएं मिन्नत समाजत किसी के काम नहीं आई थी। रात की तारीकी में इसे दरबदर कर दिया गया था, इस शख्स के साथ जिसके नाम से भी वो वाकिफ़ नहीं थी। वो शख्स जो शाहबत का दोस्त था, इससे मिलने शहर से आया था। दिलावर यज़दानी भी यमरे की बजाय जाल का शिकार बना था। वो इतनी आसानी से इसका पता साफ हो जाने पर बहुत खुश थी। दिलावर याज़दानी इलेक्शन कमीशन में एक मुतवस्सित तबके का सरकारी मुलाजिम था। अरीना की खूबसूरती ने बीच राह में इसे एक मुनासिब फ़ैसला लेने पर मजबूर कर दिया था, और शहर पहुँचते इसने अरीना को ज़िंदगी के इस पेच व ग़म को समझाते इसे अल्लाह की रज़ा में खुश रहने का कहा था। लेकिन अरीना ने अपनों का दिया ज़ख्म ऐसे सीने से लगाया कि ज़िंदगी की रमक बधत पड़ने लगी थी। दिलावर याज़दानी इसे सँभालने का पूरा मौका दे रहे थे। शब व रोज़ ऐसे ही गुज़रते जब अना ने लफ्ज़ माँ बोलते इनमें एक नई रूह फूँक दी थी। वो जीने लगी थी, अपनी बेटी की खातिर ज़िंदगी की तरफ वापस आने लगी थी। दिन माह साल गुज़रे, लेकिन दिलावर यज़दानी और इनके बीच का फ़ासला कभी कम ही नहीं होने पाया था। जब एक हौलनाक हादसे में वो अपनी दोनों टाँगें गँवा बैठे थे। सरकार ने खुदा तरसी में दिलावर यस्तानी की नौकरी इसकी बीवी के नाम तसीस कर दी, तो अरीना पे एकदम जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा था। उम्र के फासलों को तय करती अना हर बात देखने और समझने लगी थी। इसने दिलावर यस्तानी और अरीना को हमेशा खामोश सिर्फ पाया था, जब घर के सन्नाटे इसे बेजान करने लगे थे। फिर इसने बोलना शुरू कर दिया, इतना कि दिलावर यस्तानी और अरीना के दरमियान छाया 18 साल का जम्मू टूटने लगा था। कभी बेतहाशा हंसती अरीना रोने बैठ जाती तो वो इनकी खामोशी के इसरार जानने पे बाज़िद नज़र आती थी। इनके कॉलेज में इनामात की तक़सीम का दिन था। हमेशा की तरह हर दलीस अना ने इस बार भी बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप किया था। क्लास में सभी लोग इसकी आवाज़ के दिलदार थे। स्टेज पे इसके नाम की पुकार पड़ी तो वो भागते हुए इस तरफ बढ़ी, और जो बाहर कैंटीन से गोलगप्पे खाने में मसरूफ़ थी, तभी सामने से आते शख्स से बुरी तरह टकराई थी। ओह सॉरी, मैं वो ज़रा जल्दी में थी। एक्चुअली मेरी फ़र्स्ट पोज़ीशन आई है तो मुझे इनाम मिलेगा। आपको पता है मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। ऐसा मैं नहीं कहती, बाकी सब कहते हैं। सो जब भी मैंने इनाम जीता है तब तब हमारी प्रिंसिपल ने सॉन्ग की फरमाइश की है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा गाना सिंग करूँ, या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। वो तेज़-तेज़ बोलती, इससे सरापा सवाल थी जो इसे बहुत सख्त सुनाने का सोचते बिल्कुल मदहम सा हो गया था। हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए हैं आप? अनन ने इसके सामने चुटकी बजाते हुए किसी गहरी नींद से जगाया जो इसकी पनखड़ी होठों की जंबिश में खोया था। ओह हाँ, क्या आपने मुझसे कुछ कहा? पहली बार वो शख्स बोला था, इंतहाई दिलकश अंदाज और लव्व लहजा। अना तो फ्लैट हुई थी, पर दूसरे ही पल नॉर्मल हुई।
गाना बताना था ना आपने मुझे। अना बागड़ी प्रिंसिपल कब से पुकार रही है तुम्हें। तभी इसकी एक क्लास फेलो ने अना के पीछे से हमला आवर होते इसे पकड़ा था और अपने साथ की सीट के ले गई थी। अना हर बात भूले कॉलेज के पंडाल में पहुंची थी। खुद को कंपोज किए वो स्टेज पर चढ़ी थी जब मेहमान खुशूसी के हाथों से इसे अवार्ड मिलना था, और अपने सामने मौजूद शख्स को देखते वो हैरान और जो इसे इनाम पकड़ा रहा था। डियर डियर प्रिंसिपल, हमने यही सुना कि आपकी होना तालबा गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं, सो एक बार तो हम इनसे भी अपनी पसंद का गाना ज़रूर सुनना चाहेंगे। मेहमानों खुशीसी की फरमाइश पे प्रिंसिपल ने ज़ोर शोर से अस्पात में सर हिलाया। अना तक माइक पे पहली बोली गई फरमाइश पहुँचाई गई तो इसने खामोशी से माइक थाम लिया। बेगुनाह दिल तोड़ा है मेरा, बेवजह दिल तोड़ा है मेरा, तेरे लफ्ज़ों ने तबाह किया, नादानियों ने यूँ फ़ना किया है, ऐसा क्यों है क्या है ओ बेरहम, फ़लक से जो गिरी वो मेरी जज़ा है, मिलाना है खुदा जो तेरी रज़ा है, मगर ये है गुज़ारिश करार दे खुदाया। बंद आँखों से गाते इसने अपनी आवाज़ का सहर जगाया था। वो आवाज़ बंद हो चुकी थी, लेकिन कितनी देर वो इस आवाज़ और सहर में खोया रहा था, जबकि अना की आँखें बार-बार इस अजनबी शख्स की तरफ उठ रही थी। वजह ये थी कि गोलगप्पे खाते वक़्त वो यही गुनगुना रही थी और उस शख्स ने सुना था और फ़रमाइश जड़ दी थी। अपना इनाम लेते हुए बाहर आए तो सामने वो सीने पे हाथ जमाए शायद इसी का इंतज़ार कर रहा था। कांग्रेट्स मिस अन्ना। इसने मुस्कुराती निगाहों से अन्ना को देखा तो वो इकरार करने पे मजबूर हुई थी। इस शख्स की मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी, अपनी सी। थैंक्स, बाय द वे वो आपका फ़ेवरेट गाना नहीं था। अन्ना ने फिर से अपनी कन्फ्यूज़न ज़बान पर लाई। आहा, तो समझ गई आ गई आपको, वैसे मैं गाने नहीं सुनता बस अनादिल। बरजस्ता इसकी ज़बान से अदा होते लफ्ज़ में चौंकी थी। अना दिलावर है नाम मेरा। वो अपने नाम की तब्दीली पे चिढ़ते हुए बोली थी। आई नो। बिना इसके इतराज़ को किसी को खाते में लाए इसने कहा था। बाय द वे मुझे दिल्हाम बख्त कहते हैं। ये अना और दिल्हाम बख्त का पहला तारुफ था जो दिल्हाम ने अपनी जो चौड़ी हथेली इसके सामने करते हुए करवाया था। आई नो स्टेज पर नाम लिया जा रहा था दिल्हा बख्त का। शोल्डर बैग को हाथ में चलाते हुए कहा। दोनों बातें करते कॉलेज गेट के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। दिल्हाम ने तस्दीक की थी। नाम कुछ अजीब सा है ना, दिल्हा ओ में मीम एक्स्ट्रा था शायद। दिल्हाम। फ़ौरन से इसके नाम पे एतराज़ हुआ तो दिल्हाम का कहकमा बेसाख्ता था। आज से पहले कभी इतना अजीब नहीं लगा था, अब तो मैं खुद इनकम्फर्टेबल हो रहा हूँ अपने नाम से। दिल्हाम ने सर खुजाते हुए कहा तो वो भी खिलखिलाई थी और उसकी हंसी के मधुरता में खोया था। वेल, मेरी वैन आ गई है, बाय। वो एकदम से अजनबियत की चादर उड़े बाहर की तरफ भागी थी, जबकि दिल्हाम कितनी देर इसके एहसास को महसूस करता रहा था। वो जैसी ही लड़कियों से हमेशा एक फासला बना के रहने की आदत थी, इना दिलावर ने पूरे वजूद से इसे अपनी तलसमियाती अक्टोपस का शिकार किया था। इसकी नज़रें अना की वैन का नंबर नोट करने लगी थी। कोई नहीं कह सकता था कि दिल्हाम बख्श जो कि एक फेमस पॉलिटिशियन और नौजवान नस्ल का नुमाइंदा था, वो पहली ही नज़र में अपने से 5 साल छोटी लड़की की मोहब्बत का घायल हुआ था कि अभी इसे इश्क की मनाजिल भी तय करनी थी। व्हाइट रोज़ और लिली फ्लावर से सजाया गया था कमरा, और उसके वसत में रखे झाइजी सास गोल शेप के डबल बेड पर बैठी सर झुकाया बामुश्किल अपने आंसू पीने की कोशिश में थी। वो कमरे में दाखिल होते इसे देखते ही गहरा सांस भर के रह गया था। खटकने की आवाज़ पर इसने चौंकते हुए सामने देखा, जहाँ वो रिवायती दुल्हा का लिबास पहने इसका दिल्हाम बख्त सपाट चेहरा लिए आगे बढ़ रहा था। अना ने एक शिकायती निगाह इस पर डालते हुए रुख मोड़ लिया था। कुछ ऐसी शिकायती निगाह दिल्हाम बख्त ने भी इस पर डाली थी। आप इंतहाई बुज़दिल इंसान हो दिल्हाम बख्त। वो इसे देखते ही साइड टेबल पर रखे फूल उठाए इसे मारने लगी थी। जो बेचारे चटेल सेने के मालिक दिल्हाम बख्त का क्या बगाड़ते, वो किसी डाली से टूट फूट कर ज़मीन पर गिर रहे थे। ओ माई गुडनेस, देखो मेरी बहनों को कितनी के वो सयानी है, तुम्हारे इरादों से बाखूबी वाकिफ़ थी, तभी कमरे में कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं रखी जो इनके भाई को नुकसान पहुँचाए। इसकी हालत ज़ार से महफूज होते दिल्हाम बख्त ने कहा। आज वो दूसरी बार अन्ना को यूं रोते हुए देख रहा था। कहीं न कहीं सोई मोहब्बत ने इसके सीने में चुभन पैदा करनी चाहिए, पर वो दिल्हाम बख्त था पत्थरों को मात देने वाला। वैसे मुझे भी हक था तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने का। इसकी बात पे अना ने गुस्से में इसे घूरा था, जो इसे देखने के बाद लाखों की मालकियत वाले आलीशान लिबास को देखने लगा, जिसने इसे आते ही दरवाजे के करीबी सलामी दी थी। इस वक्त वो अपने मामूल के हुलिये में मलबूस दुल्हनों का रिवायती लिबास उतार कम फेंक ज़्यादा चुकी थी। गर्जिया बिल्कुल साफ शफाफ निखरे नक्रूस इसे कहीं से भी कुछ मिनटों की पहले की दुल्हन नजर जाहिर नहीं कर रहे थे। भाड़ में जाए और भाड़ में गया आपका हक। खबरदार खबरदार, आप मुझ पर किसी किस्म का रोब जमाने की कोशिश
कोशिश की। दूसरों के सामने बनाया गया आपका भरम तोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगाऊँगी मैं। वो बेड से उतरते इसके करीब आते वार्निंग देने लगी थी। दिल्हाम वक़्त ने होठों को कतरते नाक के ज़रिए साँस लेते अपनी मुस्कुराहट छुपाने की ज़रा भी कोशिश नहीं की थी। अना का बस नहीं चल रहा था इस शख्स का मर्डर कर दे जिसने इसका सारा प्लान चौपट कर दिया था। वो आँखों में आँसू भरे वहाँ से निकलते बाहर की जाने पड़ने लगी जब दुल्हन ने एक ही जिस्म में इसे जा लिया था। नो नो माय डियर अनादिल इतनी आसानी से भला कैसे दुल्हन वक्त में अपना तमाशा लगाने दे सकता है। कुछ तो हमारी भी सुन लो। अना दिलावर हूँ मैं। इसने हमेशा वाला रिमाइंडर दोहराया तो इल्हाम ने अपनी दायां हाथ की पूंछ से इसकी कली जैसी मुलायम रुखसारों को छुआ था। एक करंट की लहर अना के वजूद में दौड़ी थी। अनादिल दिल्हाम के दिलो दिमाग में अपनी तमाम तर नफरतों को सहते रहने वाली अना मिसिस अना दिल्हाम सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए इसने बेजान सी ठहरी अना की तरफ ज़रा से झुकते धीमे सिरों में इसकी कानों में सरगोशी की थी। इस 2 बार के निके में पहली बार दलाम ने अपने हवाले से अना के नाम पर जोर दिया तो इसकी रंगत सफ़ेद पड़ने लगी थी। अपनी औकात से बढ़ के पंगे नहीं लेने चाहिए माई वाइफी। रुखसार से फैलता हाथ अना के सीने पे आ टिका था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते दिल्हाम ने इसे हल्का सा पुश करते बेड पे गिराया था। कि तुम्हारे फेवरेट ड्रामा मूवी का सीन नहीं है अनादिल जहाँ तुम ड्रामा रचाती रूम चेंज कर लो बाहर जाके मुझे तमाशा बनाओ ये हकीकी ज़िंदगी है जहाँ तुम्हें दिलाम बख्त की नफरत को अपने दिल व दिमाग के साथ अपने वजूद पे भी सहना होगा। तुम्हें दिलाम बख्त के साथ ताउम्र रहना होगा। अपने वजूद पे रेंगते दिलाम के हाथ से इसे नाक की मानन रचने लगे थे। खौफ से इसकी आंखें फटने लगी थी। जब दिलाम ने इस पे झुकते पहली जसारत कर डाली तो वो जैसे होश में आई थी। पूरी की कुव्वत से इसे पीछे धकेलना चाहा था। अपने खौफ में दिलाम के लबों पे खुलती मुस्कुराहट नहीं देख पाई थी। आप ऐसा नहीं कर सकते मुझे ये सब मंजूर नहीं। इसकी आंखों से शरारे फूटने लगे थे जबकि वो खौफ से जबान पे लड़खड़ाहट पैदा हुई थी। आहा मेरे लिए इम्तिहान बनने से पहले कभी मेरी इजाज़त दी थी जो मुझसे रहम की तवक्को करोगी आप। तल्हाम की आंखों में जमा ग्लेशियर इसे टटराए जा रहा था। वो जवाब देना चाहती थी पर अपने रुखसार पे होने वाली दल्हाम की बाइट ने इसे चलाने पर मजबूर किया था और उस पे दल्हाम का थप्पड़ ने दूसरी लम्हा इसकी बोलती बंद करवा दी थी। अब तक इज्जत उछालने का ढोंग तुमने रचाया अना दल्हाम बख्त लेकिन अब शतरंज की बाजी मैं चलूंगा मोहरा तुम बनोगी। इसके सीने पे शहादत की उंगली से चुभन जोड़े वो पीछे हट गया था। तुम्हारे साथ सोने से बेहतर है मैं किसी रखेल रख लूँ या खुशफहमी निकाल दो कि दिल्हाम बखत की बात करेगा वो भी तुम्हारे वजूद से। दिल्हाम के लफ्ज़ इतना कि इसके वजूद के लिए हद तक लिए हुए थे जबकि इसकी ज़बान बेदर इसकी ज़ात के बखीले उधड़ने लगे थे। वो पहली शब की दुल्हन थी जो अपनी किस्मत पे हद दर्जा मातम गना सी थी। वो औंधे मुंह बिस्तर पे गिरते पूरी शिद्दत से रोई थी। वो मजबूत अना मोतियों की नाजुक लड़ी जैसी लड़की दर्द सी सख्ती पे टूट के बिखरी थी। शायद कि एक लंबी अरसा तक चाहने वालों का ये नफरत भरा अंदाज एक दूसरे के लिए तकलीफ दे था। रूम से निकलते ही दलाल बख्त ने हवेली के तारीख गोशे का इंतखाब किया था। इसके दिमाग की नसें फटने लगी थी। पूरी शिद्दत से इसने अपने हाथों को दीवार पर मारते इसने खुद से अना को मारे जाने वाले थप्पड़ का इंतकाम लिया था। अगर गुजरी शब अना ने इसके साथ ज़ख्म का हिसाब खुद को ज़ख्म दे के लिया था तो वो भी इतना ही दीवाना शख्स था। दीवार से सर टिका अपना सब कुछ हारे बैठा था। आंखों के सामने गुजरी शब का मंजर घुमा था जब इस लड़की की बगावत ने दिल्हाम की मर्दानगी पे कारी ज़रब लगाते अपने लिए गड़ा खोद लिया था। मुझे दिल्हाम वक्त से तलाक चाहिए मुझे शादी नहीं करनी क्योंकि उन्होंने मुझे इस चीज़ को लेके ज़दकोब किया है। ये मुझसे शादी नहीं करना चाहते दाराजन और मैं इनकी खुशी के लिए अपनी इस मोहब्बत की कुर्बानी देती हूँ जो निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते में बन जाने के बाद मैंने इनसे की है। वो सिसकती हुई अपने सर की चादर दारजान के कदमों में रखती दिल्हाम के दिमाग को फक कर गई थी। दिल्हाम बख्त क्या ये लड़की सही कह रही है। दाराजान की आवाज़ की गूंज से पूरा कमरा लर्ज उठा था। दिल्हाम अभी तक गैर यकीनी कैफियत में झूठ के पलंदे बांधे अना को देख ही रहा था। दादा जान मैं क्यों झूठ बोलूँगी ये सारा जिंदगी का मामला मैं ऐसी एक अनचाही बीवी बन के नहीं गुजार सकती। अना के दलाइल दलाम की खामोशी इसे मुजरिम साबित करने लगी थी। क्या तुम नहीं जानते इस ख़ानदान की सास पुश्तों में भी ऐसा लफ्ज़ किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। दल्हाम बख्त तुम इसके नताइज से आगाह हो। पूरी दुनिया हम पे थू करेगी चंद घंटों बाद शादी और तुम अपनी दुल्हन से ये रवैया अपना रहे हो। दारा जान की बात पर इसने एक आड़दार निगाह इना पर डाली। आई एम सॉरी दारा जान मैं इस वक्त गुस्से में था। आई स्वेयर आपके आपके मैं अपनी बीवी का साथ छोड़ने के साथ ही छोड़ूंगा। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। अब अगर ये खुद भी ये रिश्ता तोड़ना चाहेगी तो भी ये मुमकिन नहीं होगा।
दिल्हम बक्का वार अन्ना को एकदम लड़खड़ा गए। वो क्या सोच के आई थी, क्या होने जा रहा था। दाराजन सर खुद से ठहरे, दिल्हम बक को गले से लगा गए और अन्ना के सर पर चादर उड़ाए इसके इसके कमरे की तरफ ले जाने लगे थे। वो वो बेयकीन से आगे बढ़ते जरा सी गर्दन मुड़े दिल्हम बक को देखने लगी, जिसने विक्ट्री का निशान बनाते दोनों उंगली को माथे से मिस करते इसके गेम को गुड बाय कहा था। और अब वो इसके कमरे में मौजूद थी। एक मौसम हैसियत देख कर एक ज़माना था कि इसने अन्ना को इस रूप में इस जगह पे देखने ने कितने सपने बुने थे। अब मोहब्बत सर निगोड़े किसी मलंग की मस्कन पे पड़ी थी और दोनों इतराफ में नफरत का डेरा जमा था। काफ़ी देर अपने अंदर के हब्स को सिगरेट के धुएं में तहलील करने के बाद वो कमरे में आया। वो उसे सोफे पे सोई दिखाई थी, जिसने दोनों बाजू आंखों पे रखे हुए थे। दुल्हन ने इसे इग्नोर करते अपना ड्रेस लिया और कितनी देर बात लेने के बाद खुद को कुछ बेहतर महसूस करता बाहर आया था। भूली भटकी निगाह इसके वजूद पे पड़ी, जो अभी भी ऐसे ही पड़ी हुई थी। एक गहरी सांस भरते इसने टॉवल एक तरफ फेंका और उस फूलों के जैसे मुलायम लड़की को अपने दिए हुए कल सीने में छिपाए बिस्तर पे लाया था। इसे अंदाज़ा हुआ था कि वो नींद में सिसक रही थी। इसे एक तरफ सुलाते इसने लाइट्स ऑफ की और इससे रुख मोड़े सो गया। लेकिन अन्ना भी बेदार होती तो यही रवैया अपनाती। तमाम तर बरगंदा सोचे सोते वक्त इसके दिमाग पे हावी होने लगी थी, जिनसे चाह के भी वो जान नहीं छुड़ा पाता था। जिस वक्त अरीना को हवेली से निकाला गया था, इस वक्त वो 6 साल की उम्र का हंसा उब्र करता दिखाई दिया था। आम बच्चों की बानिस्बत माँ बाप के रवैयों ने इसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। वो हर छोटी छोटी बात को हर दर्जा गहराई से देखने लगा था। बरसती बारिश में रोती इस छोटी गुड़िया की आवाज़ पर उठते हुए वो कमरे से बाहर आया तो इसे इमरे के हाथ में देख शौक मोहब्बत से लेने को आगे हाथ बढ़ाया, जिन्हें इमरान ने सख्ती से झटक दिया। न जाने किसका गंदा खून पाले फिर रही है इसकी माँ दलहाम। तुम इस गंद को छुओगे तो तुम भी गंदे हो जाओगे। इमरान ने हमेशा नक सक तैयार रहने वाले अपने बेटे को कहा तो इसने एक नज़र इस गुड़िया पे डाली और पीछे हो गया था। तभी शाहबक अंदर आया था। क्यों रो रही है, ये अरीना कहाँ है? एक नज़र खाली कमरे पर डालते हुए इसने कहा तो इमरान ने भरपूर चौंकने की एक्टिंग की। पता नहीं, और आप यहाँ हैं? मैं तो समझी आप इनकी एसी में गए हैं। काफ़ी देर पहले ही मुझे एक साया सा निया किसी की तरफ बढ़ता हुआ मालूम हुआ। मैं समझी आप अपने दोस्त के पास जा रहे हैं। इमरान ने बच्ची को जलाते हुए कहा तो शाहबाग के माथे पे कई सलावटें नमूदार हुई। वो तेजी से केसी की तरफ बढ़े तो इमरान जानबूझ के रोती हुई बच्ची को हर एक के दरवाजे के सामने से गुजारती कमरे में झांक झांक के अरीना की मौजूदगी का पूछा था। ये सब इतनी तेजी से हुआ था कि सभी हवास पख्ता थे और फिर इन केसी की तरफ बढ़ते इमरान और शाहबाग के कदमों के साय में सभी इनके पीछे आए थे। सामने के मंजर को सबने वैसे ही लिया था जैसे दिखाया जा रहा था। अरीना को निकाले इमरान की मुकम्मल सुकून की ज़िंदगी गुजार रही थी, जब एक दिन बीजान और फ़हीम के साथ बात करते शाहबत की आवाज़ ने इसे तजस्सुस में मजबूर किया था। दिलावर यज़दानी काफ़ी बुरे हालों में है। अरीना को मैंने इसकी जगह क्लर्क की जॉब करते देखा है। अभी कोई शायद कुछ और भी कह रहा था, जिसे अरीना के हालात और दिलावर यज़दानी के एक्सीडेंट ने काफ़ी दुखी किया था। पहली मोहब्बत भूलने की न थी और खून का रिश्ता भी अपनी जगह कायम था। इमरे का दिमाग कई इसलाह बनने लगा था। अगर जो अरीना ने शाहबख्त के सामने इस रात का राज खोल दिया तो वो पागलों की तरह तरह चकराती फिर रही थी। अमन की फाख्ता ये पे 6 साल पढ़ने वाला ये पत्थर इसे हद दर्जा डिप्रेस कर चुका था। दलहाम जो माँ के सामने अपना रिजल्ट कार्ड लाया था और दिखाना चाहता था, इमरान ने इसे बुरी तरह बेतरह झड़क दिया था। मम्मा, ये इसकी बात मुकम्मल ना हुई थी जब इसके मुंह पे थप्पड़ पड़ा था। तुम्हारा बाबा इस कमज़ाद बदकिरदार औरत के इश्क में मुब्तला है, मुझे धोखा दे रहा है। इसे तुमसे ज़्यादा, अपनी बीवी से ज़्यादा अरीना की नाजायज़ बेटी और इसकी फ़िक्र हो रही है, और तुम इन किताबों के पीछे पड़े हो। इमरान ने इसकी नोटबुक उठाए तार तार कर दी थी। माँ के इस अमल पे वो सिसकने लगा था जब शाहबख्त कमरे में आए। क्या हुआ दलहाम, हाथ मत लगाओ, मेरे बेटे को कुछ नहीं लगते थे हम तुम्हारे। खुश रहो तुम अपनी इस होती सोती के साथ, जिस बद किरदार। इमरे शाहबख्त ने इसकी बात को मुकम्मल होने से पहले थप्पड़ दे मारा तो दलहाम डर के मारे माँ के के लिपट के सिसकने लगा था। हाँ मारो, मुझे मारो, तुम्हारी असलियत जो सबके सामने आ रही, मुझे तो 1 मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वो दलहाम का हाथ पकड़े बाहर निकल गई थी। बाहर सब लोग इस तमाशे पे इकट्ठा होने लगे थे। दारा जान और अफरहीम इसे एक तरफ ले जाके समझाने लगे थे। जब इसने ये हवेली दलहाम बक के नाम करने का कहा था, ताकि कल कोई भी इन्हें इस हवेली से ना निकाल सके। दारा जान ने एक नज़र वहाँ मौजूद लोगों को देखा। अमरा को खुदा 20 साल बाद औलाद की नेमत से नवाजने लगा था। वो नहीं जानती थी कि बेटा है या बेटी, लेकिन इस हवेली पे इनकी औलाद का भी हक था, पर वो खामोश रही। शाहबख्त से छोटे मोइस बख्त की गोद में भी दुरेत बख्त और रम्स मौजूद थे। ऐसे में इनके बच्चे भी इस हवेली के हकदार में शामिल थे। और फिर ये अफरीम बख्त और दरियाम बख्त की वरासती हवेली थी।
इस हिसाब से तो अरीना भी हिस्सेदार थी और इसकी औलाद अना भी, क्योंकि वो इनके मरहूम भाई और भतीजे की वारिस थी। सिर्फ दलाम बख्त के नाम इस हवेली के चले जाने से कितने लोग अपने हिस्से से महरूम पड़ जाते, लेकिन फ़तह इमरे की हुई और दुल्हाम बख्त के नाम होते ही वो एक शान तकाफुर से वहाँ रहने लगी थी। इस अमन की फाख्ता ने ज़्यादा दिन पर नहीं फैलाए थे जब हवेली में एक बार फिर से मातम सजा था। शाह बख्त एक हफ्ते के लिए किसी काम से शहर में रह गए थे और इमरा का वहम इसे किसी कल को सुकून नहीं लेने दे रहा था। जब इसने ड्राइवर से कहते दलाम को लिए शहर का रुख किया था, अपनों की बेवफाई सहती अरीना कब कैंसर जैसी मोजी मर्ज में मुब्तला हुए बिस्तर पे जा पड़ी, कोई भी इनके हाल से आगा नहीं था। ऐसे में एक दिन दोस्त की अयादत को आए शाहपत की निगाह इन पर पड़ी तो कितनी शायद इन्हें पहचानने में लगे कि वो अरीना ही है। अरीना इनसे नजरें चुरा कर निकल जाना चाहती थी, लेकिन शाह बख्त की कस्मों ने कदम रोक लिया और उन्हें मजबूरन शाह बख्त की मदद लेनी पड़ रही थी। एमरे शहर में आई तो इन मुलाजिम से इनके और इना के राब्ते की बाबत मालूम पड़ा था। घर में गोया तूफान ही आया था। रात का जब वापस आए तो इमरा की मौजूदगी इन्हें चौंका आ गई थी। तुम शहर में सबसे छुप के यही कारनामा कर रहे थे, देखना शाबक मैं इस बदजात के साथ तुम्हारी इज्जत का ज्वाला कैसे निकाल फेंकती हूँ। इमरे शदीद गुस्से में इन पर झपटी जो अभी आखिरी सीढ़ी पे थे ये। इमरे तुम नहीं सुननी मुझे कोई भी तुम्हारी बात, बिना शाबक को सुने इसने कहा था। इमरे एक बार छोड़ो मुझे, तुम हद दर्जा नीच सात इंसान। इमरे ने अपनी तरफ बढ़ते शाहबाज को अचानक से पीछे धकेला था और वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाते पीछे को गिरे थे और सीढ़ियों से लड़खड़ाते। डलती उम्र के वजह इतनी ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त नहीं की और वहीं दम तोड़ दिया। एक तरफ ठहरे दल्हाम ने ये दिलनोज बंदर देखा तो इसे गहरा सदमा लगा था। जिस वक्त इसे होश आया चिड़िया का वो आरजी ठिकाना हवा के दोष पे उड़ चुका था। बेविकी का लिबास उड़े अमृत सफ़ेद कफन में लिपटा शाह बख्त का चेहरा इसे एक बार फिर से आंखें मूंद लेने पर मजबूर कर गया था। जिस वक्त दोबारा आंख खुली तो इसके रिश्तों के साथ इसके अंदर का दलाम बख्त भी मर गया था, जिसकी जगह एक पत्थर की मूरत ने ले ली थी। अना के खिसखिसाने पे वो यादों के दरीचे से निकलते इसे देखने लगा था। वो लड़की आज भी वैसी थी जैसे 2 साल पहले। हैसियत बदलने से जो मुकाम इसे मिलने चाहिए था वो इसे नहीं दे पा रहा था। वजह वही अरीना से नफरत जिसने इसका छोटा सा आशियाना तबाह कर दिया था। एक बार फिर से आंखें मूंदे वो मासी का सफ़र करने लगा था। आपने मेरे बाबा को मारा, ये बात मैं सबको बताऊंगा, वो सिसकते हुए बोला था। इमरे जो शाफ़क़त की मौत के बाद गुमसुम होकर रह गई थी, अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनते सहमी थी। नहीं, दिल में मैंने शाबक को नहीं मारा, वो सिर्फ एक हादसा था और मैं नहीं, आपने इन्हें मारा है, मैंने देखा था, आपने इन्हें सीढ़ियों से धक्का दिया था। दिलहम अपनी बात पे बाज़िद नज़र आया तो इमरे का खौफ बढ़ने लगा था, अपनी गर्दन के गिर्द तंग होता शनकशा नज़र आया तो एकदम से दिलहम की गर्दन दबोचे इसे मारने के दर पर थी। जब उमराव कमरे में दाखिल सामने का मंजर नाकाबिले यकीन था। हाँ, मैंने मारा शाबक को, मैं तुम्हें भी मार दूंगी और इसे भी। वो हैजानी कैफियत में मुब्तला थी, इसका खौफ इसके हवासों पे हावी होने लगा था। इमरे क्या कर रही हो, ये तुम पागल हो गई है, छोड़ो उसे। इमरान दलहाम को इस गिरफ्त से निकालने की तकव्वुत करने लगी थी, लेकिन इमरे पे तो जैसे जुनून सवार था। शाहबग की मौत के बाद तो डॉक्टर वैसे भी इसे ट्रॉमेटिक कंडीशन का तो बता रहे थे। उमराव बड़ी मुश्किल से दलाम को बचा पाई थी। तुम होती कौन हो मुझसे मेरी औलाद को छीनने वाली, मेरा शौहर छीना, अब मेरा बच्चा, मैं सारे फसाद की जड़ को ही ख़त्म कर दूंगी। इमरे पे जैसे खुद जुनून सा तारी था, जहाँ उमराव का अक्स अरीना में बदल रहा था। इसकी जनूनियत से सहमते दलहाम उमरा एक तरफ को बढ़े थे जब इमरा कमरे में इसे मारने को चीज़ें ढूंढ रही थी। कुछ भी ना पाके इसने ड्रेसिंग के सामने बड़ा स्टूल उठाए उमराव की तरफ पूरी कुव्वत से उछाला था। वो दलाम को पीछे हटाने के चक्कर में खुद इस स्टूल का निशाना बनी थी। इनके पेट से दर्द की लहर सी उठी थी। दर्द से बेहाल उमराव की चीखों पे मुतवज्जह होते सभी वहाँ पहुँचे। इमरा का बिगड़ा हुआ तवाज़ुन, उमराव की तशवीशनाक हालत, एक तरफ को सहमा सा दलहम, अचानक से इतने सालों बाद आने वाली खुशी ने तूफान का रूप धारा। उमराव की गोद भरने से पहले ही उजड़ गई थी। दलाम हर वक्त इस चीज़ का कसूरवार खुद को समझता है, लेकिन जिसकी वजह से एक नन्ही जान दुनिया में आने से पहले ही चली गई थी। फ़हीम बेटियों के रूप में बिस्तर से लगे तो सबको इमरे के लिए कड़ा वक्त फैसला लेना पड़ा था और उसे पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया था, जहाँ कभी कभार अफ़हीम और इनके मरने के बाद दारा जान भी चले जाते थे, लेकिन शऊर की मनाजिल तय करते दिलहाम ने कभी इनकी हालत ज़ार का सोचा भी नहीं था। इस हादसे के 2 साल बाद उमरा को खुदा ने परहान की नेमत से नवाजा तो दिलहाम ने इसका हाथ का छाला बना लिया था और फरहान ने इसकी मोहब्बत को देखते उमराव को भी इस वक्त के मारे बच्चे पे रहम खाते इसे अपनी गोद की गर्मी देने लगी थी।
वक्त तेज़ी से गुजर रहा था जब दुल्हान बख्त की बेरौनक ज़िंदगी में उपहारों की जैसी लड़की ने तहलका मचा गई थी। इस दिन वो बड़े पापा की जगह मेहमान बन के गया था जो किसी और तकरीब में थे। वो दुल्हन को अच्छे खासे डोनेशन के साथ कॉलेज भेजा था और अना से पहली मुलाकात में दुल्हन को इस लड़की के हुसूल के लिए गोशा कर गई थी। सोती हुई अना का हाथ दुल्हन के सीने से टकराया तो वो माजी की अथाह गहराइयों से वापस लौटा था। जब वो इसके मस्जिद नज़दीक होते पहली रात में इसका जब्स आजमाने लगी थी। दिल्हम यकने इसे देखा जा रहा था। कुदरत का वह हसीन शाहकार सरापा उल्फत था, लेकिन दिल्हम इस मुकाम से लौट आया था। माथे पे शंकनों का बाल जाल बिछा हुआ था। वो उसका हाथ झटकते उठ खड़ा हुआ था, शायद कि अपने कमज़ोर पड़ जाने का डर था। नींद तो वैसे ही रूठ गई थी या इसके पहलू में रहती लड़की की वजह से आने से इनकारी थी। सुबह अना की आँख खुली तो खुद को दबे इस बेड पर पाते उठ बैठी थी। खाली कमरा इसकी गैर मौजूदगी की दास्तान सुना रहा था। अपनी अनादिल के लिए तो दल्हाम बख्त दुनिया को भुला दे। सुबह के आगाज़ पे दल्हाम बख्त का चेहरा और सोते वक्त भी सिर्फ और सिर्फ दल्हाम बख्त का अनादिल की दुनिया इससे हट के होनी नहीं चाहिए। कुछ खूबसूरत लम्हों की सरगोशियाँ कानों में गूंजी तो एहसास हुआ कि लोग किस तरह अपनी बातों से मुकर जाया करते हैं। मैंने जाना है कह कहे मोहब्बत मौसम नहीं अपनी मुद्दत पूरे करे और रुखसत हो जाए। मोहब्बत सावन नहीं टूट कर बरसे। मोहब्बत आँख नहीं सुलके और भड़के और बुझ जाए। मोहब्बत आफताब नहीं उभरे चमके और ढल जाए। मोहब्बत तो चाँद की मानद है जो बढ़ता है, खटकता है, निकलता है, छुपता है मगर फना नहीं होता। अगर आप मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे आयसर अना दिलावर बिगड़ जाएगी। ओह सॉरी अनादिल। आसपास कहीं अपनी शरीर हंसी गूंजी थी जो इसे अना और अनादिल के दरमियान की जंग में घुरियों से नवाजे दलहाम बग की आंखों पे आती थी। बेख्तियार सी मुस्कुराहट इस वक्त भी लबों को छू गई थी। माची को याद करते दरवाज़ा नॉक करते उमराव कमरे में दाखिल हुई थी और 2 लम्हों की वो मुस्कुराहट समेटी थी। माजी हमेशा खूबसूरत था, इसे हाल की संगीनियाँ बता रही थी। कैसी है मेरी दुल्हन की दुल्हन? एक खूबसूरत सा मुस्कुराहट जो हमेशा शख्सियत का शाखासाना थी लबों पर सजाए हुए अना की तरफ पड़ी तो अना को अपने उंगलियों पर शर्मिंदगी हुई थी। मैं ठीक हूँ आंटी, प्लीज़ बैठिए ना। हवाला कुछ अजीब सा था। दुल्हन की दुल्हन रिश्ते भी कुछ उलझे हुए से थे। तभी उमराव ने आगे बढ़ते इसके माथे पे बूसा देते इसके साथ पास बैठ के आंटी ने मम्मा आज से तुम भी मुझे दुल्हन और बाकी सब बच्चों की तरह मम्मा ही कहोगी। उमराव ने इसका चेहरा थोड़ी से पकड़े प्यार से कहा तो इनकी मोहब्बत पे अना का दिल भर आया था। तभी फरहान और रम्स भी कमरे में दाखिल हुई थी जिनके हाथ में अना के लिए ड्रेस और ज्वेलरी वगैरह थी आज के रिसेप्शन के लिए। मामा आपने मंगवाया था ना सब? फरहान उमराव के गले का हार बनते बोली थी। हाँ चलो अब टाइम वेस्ट ना करो अना का और इसे तैयार होने दो। मैं मदद दूँ? मैं बाहर के काम देख लूँ और नाश्ता भिजवाती हूँ मैं। दलाम तो पता नहीं सुबह का निकला इसका कोई जलसा था। दुनिया का अनोखा दूल्हा है जिसे अपने रिसेप्शन से ज़्यादा जल से जुलूसों की पड़ी है। उमराव कमरे से बाहर निकलते तक बोलती गई तो अना को माँ की याद आई थी। वो भी ऐसे ही बोलती थी और वो दिलावर के साथ मिलकर अरीना का मजाक उड़ाती थी कि इन्हें पीछे बोलने की आदत पड़ती जा रही है। आंखें भीगी थी। जिंदगी न जाने कैसे धूप छाँव जैसी बनने लगी थी। उमराव ने फ्रेश जूस भिजवाया तो वो फ्रेश होने चलती थी जबकि फरहान और रम्स इसकी ज्वेलरी सेट करने में लगी थी। जब दुल्हन की आमद में वो मुजस्सम बनी थी। भाई वो हम भाभी की हेल्प कर रहे थे। रम्स ने फ़ौरन से यहाँ की मौजूदगी की वजह बयान की। जाओ तुम लोग मैं कर दूंगा इसकी हेल्प। दिल्हम का अंदाज वो समझ नहीं पाई थी लेकिन फ़ौरन से गर्दनें अस्वाब में हिलाए वहाँ से रुखसत हुई थी। वो अपनी धुन में शावलिया बात गाउन पहने बाहर आई थी। जब इसे सामने देखते बुरी तरह चौंकी थी। वही दिल्हम अभी अपनी जगह साकित हुआ था। शहद रंग बालों से टपकता पानी इसके चेहरे पर शबनम के जैसे बिखरा था जबकि गुलाफी आंखों की शर्म आलूद उठती झुकती पलकों ने जैसे इसे लम्हों की गिरफ्त में लिया था। वो भूल रहा था कि गुजरी शब कितनी रौनियत से इसके वजूद की धज्जियाँ उड़ा कर गया था। अना ने खुद को उसकी बोलती आंखों के सैर से आज़ाद करा और बेड पर पड़े ड्रेस की तरफ देखा जो इसे मेलो धूल पड़ा लग रहा था लेकिन उठाना तो था। इसलिए कदम बेड की तरफ जाने बढ़ाए थे और दिल्हम के कदम इसकी तरफ बढ़े थे। अना का एतमाद कहीं जा सोया था इसे करीब आता देखकर लेकिन अगले ही लम्हे वो साकित हुई थी जब दिल्हम इसे बाजू से पकड़े पीछे की जाने खिलते दीवार से लगा गया था। इस कमरे में रहने के कुछ उसूल व ज़वाबित तय कर लो जिसमें सफ़र अव्वल ये भी है कि दिल्हम बग के कमरे में रहते हुए तुम मुकम्मल ड्रेस में रहोगी।
रत जगह की खामार आंखों को इस पे गाड़े बोला था, ये कमरा मेरा भी, अगर मैं चुप हूँ दिल्हाम बख्श ये मत भूलो कि मैं सुधर गई हूँ। नाजुक वजूद इसकी गिरफ्त में फड़फड़ाया था, साथ में इनका शहादत का इशारा करते इसे वार्न करना चाहा था। जब दिल्हाम ने एक उठी उंगली इसके जुर्म में इसका पूरा हाथ अपने आहिनी शनकशे में लिया था, वो तड़प के रह गई थी। चैलेंज कर रही हो दिल्हाम बख्श को, अब के इस गुस्ताख हाथ की सज़ा वो थी जो किसी मुजिम के जैसे बल देते इसे अना की पुश पे लगा गया। ये हरकत ऐसी थी कि वो तड़पते हुए हाथ के साथ दर्द की शिद्दत से बचने को चिल्लाते हुए रुख फेर गई। गैर एतराती तौर पर इसकी पुश्त दिल्हाम के सीने से टकराई थी, इसका पूरा वजूद ही दिल्हाम के इसार में गया था। नथों से टकराती अना के वजूद की महक गीले बालों और वजूद से उड़ती शैम्पू और बॉडी लोशन की खुशबू दिल्हाम के हवासों पे छाने लगी थी। आप हद से ज़्यादा जंगली इंसान है, हाथ छोड़े मेरा, मुझे दर्द हो रहा दिल्हाम। दर्द वाकई नाकाबिले बर्दाश्त था, तभी तो बिन मछली की पानी के मछली के मानन तड़पी थी। इसकी तड़प पे गूंजती दिल्हाम की आवाज़ सरगोशियों में ढलते मखूर हो रही थी जब इसने अपना तकान ज़दा चेहरा इसके गीलों में छिपाए लब इसके शानों पे टिकाए थे। अना मुंजमद हुई थी। चलो ये तजुर्बा भी करके देखो कि जंगली इंसान शख्स कैसे अपने वस्फ़े तुम पे आया करता है नादिल। इसके सज़ा याफ्ता हाथ पे अपनी गिरफ्त मजीद सख्त केस ने इस वक्त इसके जज्बात को शोला जवाला बनाती अना को फिर से दीवार से लगाया, जिसका चेहरा कंक्रीट ज़दा दीवार के नक्श व निगार में उलझा हुआ था। अना का दिमाग सनसनाने लगा था, इसे लग रहा था कि अगर दिल्हाम ने मज़ीद इसके चेहरे पे जबर किया तो यकीनन इसके जबड़े टूट जाएंगे, लेकिन दिल्हाम की हाथों की चंबिश अना के हवास मुअत्तल करने लगी थी, जिन्होंने बात का उनकी डोरियां को खोलते गोया इसे ज़मीन बोस किया था। बेहिजाबी का डर इसे चिल्लाने पर मजबूर कर गया था। दिल्हाम प्लीज़, अब की इल्तिजा में आंसू की नमी खिली थी, क्यों अभी से हार मान ली, जबकि दास्तान वहशत अज इश्क का पहला ही करतास पलटा है अभी। ज़रा सा झुकते अपने चेहरा इसकी शानी से टिकाया दिल्हाम ने अपना सारा वज़न इसके नाथों कंधों पे मुंतकिल किया था। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, बहुत दूर आए से, और दिल्हाम में मैं ये इंतकाम की जंग नहीं माय डियर्स अन्नू, ये जज्बा इंतकाम का शौक़ तुमने पाला था, इसका अंजाम मैं डिसाइड करूँगा। भूल कर भी ये मत भूलना कि तुम दिल्हाम बख्श के शनकशे से बाहर जा सकोगी। दिल्हाम ने सख्ती से कहते इसका बाजू झटकते इसका रुख अपनी जानिब किया था, जबकि वो रिहाई पाते बाजू को एक ढाई बनाए खुद को महफूज बनाने लगी। गुलाम की बेबाक निगाहें इसे अपने वजूद के आर पार होती महसूस होती, जबकि अन्ना का चेहरा आंसू से तरपतर होने लगा था। स्टॉप क्राइंग, वो धाड़ा था। अन्ना ने झट से आंखों को साफ करते खुद को कंपोज किया। आई हेट यू दिल्हाम, बट अगर तुम अगर सच समझते हो तो ये सब करके मुझे जेर कर लोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। से आई लव यू दिल्हाम। दिल्हाम ने इसकी नफरत अंगेज तकरीर को हवा में उड़ाते इसका चेहरा अपने हाथों में दबोचे इसकी नफरत में मोहब्बत का प्रचार चाहा था। अन्ना ने नफ़ी में सर हिलाया था। आई जस्ट हेट यू, यू आर लूजर, यू कैन नॉट फेस योर प्रम फेस दीन अनादर जस्ट आई लव यू दिल्हाम। इसकी जज्बाती तकरीर को एक बार फिर से दिल्हाम की धार ने चुप कराया था। अब के अना ने नफ़ी में सर हिलाया था। दिल्हाम ने इसकी सज़ा में इसकी नाजुक कमर में सख्ती से अपनी गिरफ्त का कम डाले से अपने करीब कर लिया कि वो इसकी सांसों की तपिश से अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस कर रही थी। अनादिल अब के वार्निंग देता अंदाज था, जबकि सज़ा की मियाद बढ़ाते अपनी हल्की हल्की शेव दाढ़ी को इसके नकोश में परोया तो कसमसाई थी। दिल्हाम की गुर्बत और इस पे मौत के परोने की सज़ा वो गड़बड़ाई थी। अक़ल को कमज़ोर इसे पड़ना था, क्योंकि इस पे औरत ज़ात का लेबल जो लगा था, अगर वो पहला वाला दिल्हाम आना होती तो कहने खिलाने की नौबत ही ना आती। जब सुबह सुबह अना का वॉइस मैसेज ड्रॉप किया हुआ मिलता कि आज से इसे दिल्हाम वक्त से 100 टाइम आई लव यू सुनना है, और वो लफ्ज़ों की बारिश करने को चला आता। प्लेनिटी में अना को सूद समेत इन लफ्ज़ों को लौटाना होता था, क्योंकि महज लफ्ज़ ना थे, इनमें जज्बात थे, और आज खुले लफ्ज़ों की फरमाइश और इनकी अदायगी में अना आ रही थी। इसने हल्की सी सिसकी भरी जब दरवाज़ा बजाया गया था। भाभी अगर आप रेडी हैं तो पार्लर वाली को भेजो। जमर की आवाज़ पे इसने अपनी सियाहत को देखा, जिसकी गिरफ्त में कोई कमी नहीं आई थी। वो मुझे जाना है दिल्हाम, इसने इल्तिजा पेश की थी, लेकिन इस जंगली शख्स से मोहब्बत के तराफ़ के बिना तुम यहाँ से हिल नहीं सकती अनादि, इसलिए जो कहा है वो करो। वहाँ रियायत का कोई खाना ना था। अन्ना ने इस वक्त को कोसा था जब उसने दिल्हाम से ज़िद लगाई थी। नहीं बोलूँगी, क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा थप्पड़ मार लोगे, जबरन जंसी इस्तेमाल करोगे। ओके डन, आई एम रेडी एंड ऑल। बीवी होना शरई कानूनी, और ऐसी बीवी जिसे दो दो बार निकाह पढ़वाया आपने, लाइक स्टार प्लस सीरियल
अपने डर को मात देने के लिए इसने पुरानी अना को जगाया था, जबकि दिलहाम इसके अंदाज को देखते ही शौक हुआ था। हैरान क्यों हो रहे हैं दिलहाम बख्त, अगर इस रूम तक आई हूँ तो इस रिश्ते के तकाज़ों से भी आगाह हूँ। जानती हूँ बहक जाओगे, इसलिए आपकी रूह अपनाते तानाज़नी नहीं की। कहने को तो मैं भी कह सकती थी, जिस वजूद पे आपने इतने हक से तसल्लुत जमाए हुए हैं, रात इसी वजूद के ठोकर मारते हुए आपने कहा था ना कि अना दिलावर से ताल्लुक़ बनाने से अच्छा कि आप किसी रखेल रख लेंगे। क्या हुआ, जबकि तनाबें टूट गई हैं, कहीं मुझे ही तो रखेल बनाने का नहीं सोच दिया जो। अनादिल अना अनाबे का फालतू की चलती ज़बान को ब्रेक दिलाम के थप्पड़ ने लगाया था। वो बेयकीनी से देख रही थी। तुमने मेरी अनादिल को थप्पड़ मारा भी तो कैसे? अना के सुन होते दिमाग में एक बात गज़ सुनी थी, जब एक वाक़ये में एक लड़के ने इसके चेहरे पे थप्पड़ मारा था और बदले में दिलहाम ने इसके दोनों रुखसारों पे अपनी वहशत के उम्र भर के निशान छोड़े थे, और आज वो खुद इसे ज़रकोब करने लगा था। वो बेयकीन थी अपनी हरकत पे, पशेमान वो भी था। रात थी तो अपनी हरकत पे इसने खुद को सज़ा दी थी, अब फिर से वही रविश। लेकिन वो हार नहीं मान सकता था। खबरदार, अगर आइंदा तुमने मेरे सामने ज़बान चलाई तो बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा मैं। अपने शिकस्ता लहजे पर काबू पाए से वार्न करते निकल गया था। खुद को दूसरे कमरे में मुकीद किए सामने आईने में अपना अक्स देखा था। क्या हुआ दिलाम बख्त, वही तो लौटाया जो तुमने बोला था। महज लफ्ज़ ही तो थे, फिर ऐसा क्यों? आईने में नजर आते शख्स ने दिलाम से सवाल किया तो इसकी आंखें पानी से भरने लगी थी। कितना अर्सा उस लड़की से भागता रहा था, क्योंकि वो नफरत और मोहब्बत में उलझ नहीं सकता था, और फिर से वो वापस आते दिलाम के कदम को आवाज़ दे गई थी। आईने में दो बेयकीन कांच के जैसी जख्मी आंखें उभरी तो दिलहाम ने हाथ बढ़ाए, इन्हें छूना चाहा तो पर वो दूर हो गई। क्यों? वो धाड़ा तो, और अगले ही लम्हे दोनों हाथ आईने में नजर आते अपने अक्स पे दे मारे थे। शीशे के कई टुकड़े में बढ़ते दिलहाम बख्त के हाथों में भी नारसाई के दुख रकम कर गया था। नीचे बिखरे कांच पे दो शिकवा गना निगाह इसे इन्हें छूने की बेकरारी पैदा कर रही थी। वो दीवाना सा इन्हें एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े पर तलाशते अपने हाथों को खून आलूद कर गया था, पर इसे फ़िक्र ही नहीं थी। इसे अपनी नादिल की आँखों के शिकवे मिटाने थे, पर कैसे? इसकी मोहब्बत पे तो नफ़रत गालिब थी। इतना आसान कहा था मोहब्बत से नफ़रत और फिर नफ़रत से मोहब्बत की पहेली को सुलझाना। एक मुद्दत से कहीं गुम है मेरा नस्फ़ वजूद, एक मुद्दत से मेरी नींद जुदा है, ख्वाब जुदा। अना बेयकीनी से रुखसार पर हाथ रखे आईने में नज़र आते अपने अक्स को देख रही थी। हमेशा से दिलाम बख्त की ज़ात में इस पर हावी रही थी, जैसे अब वो इसके रुखसार पर अपने हाथों की नकूश छोड़ गया था। इन रुखसारों को फूलों से भी छू लो तो भी मुझे तकलीफ़ होगी। अनादिल, इसने तुम्हें थप्पड़ मारा है, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? अना की आंखें खुश हो रही थी। वो शख्स बातों का पास नहीं रखता था। वो शिकस्त ख़ौदा सी ज़मीन पर बैठी थी, आंखों के सामने माजी के कुछ मंजर से चलने लगे थे, जब वो दिलाम बख्त के दिल में रहने वाली अना थी। कॉलेज में दलहाम से मिलने के बाद से इसे अक्सर ये वहम लाक रहता था कि कोई इसे वॉच कर रहा है, जिसे अपना वहम गर्दाने पर वो सज सज झटक जा देती थी। इस दिन तपती धूप में वो अपनी वैन का इंतज़ार कर रही थी, पर वैन वाले बाबा थे कि आने के नहीं दे रहे थे। जबकि ब्लैक करोला सामने आकर रुकी थी। इसने चौंकते हुए सामने देखा और दिलाम पर नज़र पड़ते हुए जहन के दरीचे को खंगालने लगी थी कि इसने इसे कहाँ देखा है। आ जाइए मिस अनादिल, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। अना के दिमाग धमाका सा हुआ था। अरे आप तो वही है ना दिलहाम बख्त। शनासाई की पहली सीढ़ी चढ़ी तो दिलहाम ने दिल पे हाथ रख के ज़रा को झुकते गोया इसकी बात पे सर बसूद होने का इशारा किया तो वो खिलखिलाई थी। ओह! और वाओ! ये आपकी गाड़ी है। वो पुरजोक सी इसकी गाड़ी में बैठी थी, जब दुल्हन ने सर इस्बात में हिलाते से नफ़ी में हिला दिया था। वो खुद भी नहीं जानता था कि इसने ये क्यों किया, पर शायद वो अना को आज़माना चाहता था, पर क्यों? ये तो इसे भी नहीं पता था। वो तो फिर किसकी है? वो उदास हुई थी। दुल्हन ने खुद को मलामत की, जिससे एक झूठ से वो उदास हुई थी। दोस्त की है, मैं कहाँ इतनी बड़ी गाड़ी अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। दिलहाम को पहली बार अंदाज़ा हुआ था कि झूठ बोलना कितना आसान है, इस पर कायम रहना कितना मुश्किल। ओह! लेकिन आपने तो हमारे कॉलेज को इतना बड़ा डोनेशन दिया, तो फिर आप कैसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते? अना के सवाल पे दिलहाम के झूठ बोलने की मज़ीद ताकत कम पड़ गई थी, जब इसने सच बोलने का इरादा किया।